Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me, your SS teacher. So students, in this video we would like to start our chapter number 1, medieval period. So part 1 is have been completed. So right now we will start part 2. So up to Nike Devi we have completed, right? So right now we will start after the Solanki dynasty. So you can see the picture over here, Nike Devi. She was the Nike Devi. So let's begin. After the Solanki dynasty, the Waghela dynasty ruled over Gujarat. The last emperor of the Waghela dynasty, Karan Dev Waghela, was defeated by Alauddin Khilji, and it brought to the end of Rajput rule over Anhirwad Patan. Later on, for a period of time, Anhirwad Patan remained the capital of Gujarat just for a namesake. During the Sultanate era, Ahmad Shah established Ahmedabad in 1411 CE. Thereafter, Patan ceased being the capital of Gujarat and became the headquarters of Subhagiri. The sultans ruled over Gujarat through the 15th century until the end of the 16th. So, आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी, जब सोलंकी डायनेस्टी ख़त्म हो गया तब वाघेला डायनेस्टी ने गुजरात में रूल किया. तो इनके जो लास्ट एम्परर, जो लास्ट किंग थे वाघेला डायनेस्टी का, वो कौन था? करण देव वाघेला थे, और उनको डिफीट कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने डिफीट कर दिया था. देन उसके बाद राजपूत रूल ख़त्म हो गया अनिर्वाड़ पाटन से. और उसके बाद क्या हुआ कि अनिर्वाड़ पाटन सिर्फ गुजरात का कैपिटल था नाम के लिए, ओनली फॉर अ नेम सेक. नाम, सिर्फ और सिर्फ नाम का ही गुजरात का कैपिटल था अनिर्वाड़ पाटन. बट उसके बाद फिर सल्तनत ईरा चालू हो गया और अहमद शाह ने अहमदाबाद इस्टेब्लिश किया 1411 CE में. देन पाटन सीज्ड बीइंग द कैपिटल ऑफ गुजरात. फिर पाटन गुजरात का कैपिटल बन गया था और सुभागिरी वो हेडक्वार्टर था ये कैपिटल्स के. देन जितने भी सुल्तान थे गुजरात के, वो 15 सेंचुरीज़ में 16 सेंचुरी तक वो लोग ने रूल किया गुजरात में. देन during this era, notable sultans like Ahmad Shah, Mahmud Begada and Muzaffar Shah ruled over Gujarat. At the beginning of the 17th century, the Mughal Dynasty established itself over Gujarat, and thereafter many other kingdoms came into existence in गुजरात. सो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जिस टाइम में ये रूल हो रहा था तब बहुत सारे सुल्तान्स थे, जैसे अहमद शाह, महमूद बेगाड़ा एंड मुजफ्फर शाह. इन लोगों ने गुजरात में रूल किया. तो जब 17th सेंचुरी का बिगनिंग था तब मुग़ल डायनेस्टी ने गुजरात में शासन चालू कर दिया था, और ऐसे बहुत सारे किंगडम्स थे जो गुजरात के एग्जिस्टेंस में मुग़ल डायनेस्टी के अंडर में था. नाउ administration. During the Solanki era, the king was the most powerful of all. The various departments of the kingdom was handled by different ministers. The most important minister was known as Mahamatya, who looked after the finance department, Sri Karan. The most important department of the administration was known as Mandal. The capital of this kingdom was located on the bank of the river Saraswati, and hence it was known as Saraswati Mandal. The subsection of the Mandal was known as Pathak. There were several such Pathaks which included many villages within their folds. Mandals such as Kutch Mandal, Saurashtra Mandal, Khetak Mandal, Kheda, लाल मंडल, मेड़पट मंडल वे प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम. तो स्टूडेंट्स क्या बोला गया इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में
कि जब सोलंकी ईरा चालू था तब बहुत किंग सबसे पावरफुल थे, उस टाइम के जो किंग थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स किंगडम में हैंडल करना था जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैंडल करते थे। तो जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे उनको महामत्य बोलते थे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते थे, पैसों के रिलेटेड डिपार्टमेंट देखते थे। और वो पूरे डिपार्टमेंट का नाम क्या होता था? मंडल नाम होता था। एंड द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वॉज लोकेटेड, ये जो कैपिटल है किंगडम का वो लोकेटेड होता था रिवर सरस्वती के वहाँ पे, इसलिए इसको सरस्वती मंडल भी बोला जाता है। और ये पूरा का पूरा मंडल को पाठक भी बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारे पाठक थे बहुत सारे विलेजेस में, जैसे कि सौराष्ट्र मंडल, कच्छ मंडल, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस टाइम में मंडल्स बने होते हैं, यू कैन से ग्रुप्स। ओके, now we will see architecture and culture. Many people followed Shaivism in Gujarat during the Solanki era. At this time, Somnath was the prime center of Shaivism, while Dwarika was the famous pilgrim center for the Vaishnavas. The influence of Buddhism reduced during the medieval age, while Jainism gathered momentum. As a result, many magnificent Jain temples were built. This period also saw the progress of architecture, sculpture and painting. The architecture of this time exhibited the Rajasthani style of temple carving, the Sun Temple of Modhera, the Vimla Vaisahi Temple of Abu were constructed in the 11th century, while the Rudra Mahalya Temple, the reconstructed Somnath temple were built in the 12th century. The 13th century saw the construction of the Dilwara temples of Mount Abu, which attained a prominent place in the architectural splendor of India. So students, उस टाइम में जब सोलंकी ईरा थे तब शैविज़म बहुत ज़्यादा चल रहा था, मतलब शिव जी को जो मानते हैं वो। तो सोमनाथ सबसे मेन सेंटर था शैविज़म का, और वैसे ही वैष्णव्स के लिए द्वारिका मेन सेंटर था। उस टाइम बुद्धिज़्म जो मानते थे वो बहुत कम होने लगा था, उसका चर्चा बहुत कम होने लगा था। तब जैनिज़्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जैनिज़्म। इसकी वजह से जैन टेम्पल्स बहुत सारे बिल्ड किए गए हैं उस टाइम पे, बहुत सारे बिल्ड किए गए। देन वी कैन से दैट पेंटिंग्स, जो पीरियड को पेंटिंग्स बनाया गया था उस टाइम में, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए गए, जैसे टेम्पल ऑफ मोढेरा, विमला वसाही, टेम्पल ऑफ आबू, ये सारे 11th सेंचुरीज़ में बने गए हैं। और इसमें से रुद्र महाल्या टेम्पल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। फिर रिकंस्ट्रक्शन सोमनाथ टेम्पल जो 12th सेंचुरी में बनाया गया था, और फिर दिलवारा टेम्पल माउंट आबू का, ये सारे बहुत ज़्यादा ही फेमस एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स है स्टूडेंट्स। सी यू कैन सी दिस वन, कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर, ये है कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर। Now, along with the temple architecture of Gujarat, other architectural works such as forts, gateways, arches of temples were also included. Among all the Kirti Torans, the Kirti Toran of Vadnagar is very famous. Manuscripts were usually written on plum leaves. Margins were drawn along the four sides of these 2-3 feet long and 2-3 inch wide leaves, and within that limited space writings or drawings were executed. Besides this, a lot of literary work on Jainism was accomplished during the Solanki era, like the Dwarshya Granth. जैसे गुजरात में आर्किटेक्चर, टेम्पल्स के आर्किटेक्चर बहुत पॉपुलर हुए थे, वैसे ही लेक्स भी, फोर्ट्स भी, गेटवेज भी, टेम्पल्स, तोरन्स भी बहुत ज़्यादा फेमस था। उस टाइम के कीर्ति तोरण जो वडनगर का था वो बहुत ज़्यादा फेमस था।
उसमें जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आपको पता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जो पहले ज़माने में बुक्स थोड़े ना होते थे, तो वो लोग प्लम ट्रीज़ लीव्स, प्लम ट्रीज़ के ऊपर लिखते थे। उसमें 4 साइड करते थे 2-2, 3-3 फीट्स के, और उसके अंदर फिर उनको जो लिखना होता था फिर वो लिखते थे और ड्राइंग करते थे। ऐसा बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमारे पास है, जिससे प्रूफ होता है कि पहले ज़माने में कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट होते थे। सो नाउ वो लोग क्या करते थे, जैनिज़्म का जो वर्क है वो पूरा का पूरा सोलंकी ईरा का स्वार्य ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो जैनिज़्म की ग्रंथ है, द्वार्यस्य ग्रंथ। नाउ Ahmedabad became the center of administration during the Sultanate regime. Many books were written in Persian. Also, many works in Gujarati have been written during this period. Many famous mosques were built during the Sultanate as well as the Mughal era. The famed Siddhi Sayyad Grill of Ahmedabad and the Sarkhej Roja Mosque were constructed during that time. तो अहमदाबाद में सबसे सेंटर, अहमदाबाद को सल्तनत रीजन का सबसे मेन सेंटर बोला जाता है, और उस टाइम में पर्शियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बुक्स में लिखे जाते थे और गुजरातीज़ भी लिखे जाते थे उस टाइम में। बट उस टाइम के जो मॉस्क्यूज़ थे जिन्होंने सल्तनत ईरा में बनाया था वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि सिद्दी सैयद की झाली, जैसे आप लोग ने सुना होगा, और सारखेज रोजा मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, ये उस टाइम के बनाए हुए हैं। Thus, during the medieval age for almost 560 years, Gujarat was ruled over by the Rajput dynasty and later by the Sultanate era and the Mughal era. This is evident from the architectural splendor and the literary works of that period. So, medieval age 560 years तक चला था, राइट, मिडल एज आप बोल सकते हो। तो उस टाइम में गुजरात में राजपूत डायनेस्टी ने भी रूल किया, और उसके बाद सल्तनत लोगों ने रूल किया, और उसके बाद मुग़ल ईरा आया। तो इससे ये पता चलता है कि इन लोगों ने आर्किटेक्चुरली की वजह से बहुत सारा काम किया है और इसे ग्रो करवाया है। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर चैप्टर कंप्लीटेड। सो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स है दैट वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्ट। So students, our work is now completed. So your homework is that you have to read this chapter 1 to 2 times, and later on I will make you write the question answers. Okay students? So read the chapter and I will see you in the next topic with a new chapter. Till there, stay home and stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. So bye bye.